أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. یہ سورہ نحل کا اور اس کے ساتھ ساتھ 14ویں پاری کا آخری رکوع ہے. اس کے اوپر میں 14واں پارہ بھی ختم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ نحل بھی ختم ہوتی ہے. یہ آخری رکوع ہے 16واں. اس کے اندر میں اس رکوع کے اندر میں 9 آیتیں ہیں. انشاءاللہ یہ ارادہ ہے کہ آج 4 آیتوں کی تفسیر اور باقی جو 5 آیتیں ہیں ان کا ترجمہ یہ بیان کر دیتے ہیں. امید تو یہ ہے کہ آئندہ کل روزہ رکھنا ہی ہے. سعودی والوں نے بھی تو اس لیے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، یہاں دعوت اور تبلیغ کی لائن سی باتیں ہیں، تفصیلی ہیں. آئندہ کل انشاءاللہ عرض کریں گے اور آج آپ کے سامنے 4 آیتوں کی تفسیر کر دیتے ہیں. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے، ایک جماعت تھے، ایمان تھے، پیشوا تھے، مقتدا تھے. امتن کا ترجمہ جو الگ الگ ہوتا ہے. قانتاً تابعدار تھے، للہ اللہ تعالیٰ کے، حنیفاً اللہ تعالیٰ کی یکسو ہو کر عبادت کرنے والے تھے. ولم یک من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام یہ مشرکین میں سے نہیں تھے. شاکراً لانعمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے. اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پسند فرما لیا، ان کو چن لیا. وہداہ، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو رہنمائی فرمائی، ہدایت عطا فرمائی، الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی. وآتیناہ فی الدنیا حسنہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کے اندر بھلائی عطا فرمائی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت کے اندر میں بھی البتہ نیک لوگوں میں سے ہے. ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی. اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ان اتبع
इत्तिबा करो, पैरवी करो, ये हमने वही भेजी। किसकी? मिल्लत इब्राहीम हनीफा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मिल्लत और मजहब की पैरवी करो। हनीफन यकसू होकर, वमा कान मिनल मुशरिकीन, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुशरिकीन में से नहीं थे। इन्नमा जुइल सब्तु अलल्लज़ीना इख्तलफ़ू फ़ीह, यकीनन शनिचर के दिन को मुकर्रर किया गया था उन लोगों के ऊपर जिन लोगों ने शनिचर के दिन के बारे में इख्तिलाफ किया था। शनिचर के दिन के बारे में जिन लोगों ने इख्तिलाफ किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर शनिचर के दिन को मुतय्यन कर दिया। व इन्न रब्बक, और बेशक तेरा परवरदिगार, लयहकुमु, ज़रूर फैसला करेगा, बैनहुम, शनिचर के बारे में इख्तिलाफ करने वाले लोगों के दरमियान में फैसला करेगा। यौमल क़ियामती, क़यामत के दिन, फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून, जिसके अंदर में ये लोग इख्तिलाफ करते थे। ये 4 आयतों का तर्जुमा हुआ, 5 आयतों का तर्जुमा हुआ। अब यहाँ पर एक बात जो उलमा और मुफस्सिरीन ने लिखी हुई है कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया। अगले वाला जो रुकू था और ये रुकू जो है, इन दोनों के दरमियान के अंदर में मुनासबत और जोड़ क्या है? इससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने नाफरमानों का ज़िक्र फरमाया और कौन कौन सी चीज़ें जो उन पर हराम कर दी गई, ये वगैरह, हलाल का, हराम का, ये वगैरह तज़किरा फरमाया। गुज़श्ता कल की जो दरस तफसीर के अंदर में अर्ज़ किया गया था, यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र इसलिए फरमाते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये बड़े आदमी थे, अरबों के और बनी इसराइल के जद्द अमजद थे। यहूदी, नसरानी और अरब, इन तमाम के जद्द अमजद यानी ये दादा थे। शुरू के अंदर में बताया था कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे इस्माइल और इसहाक। इस्माइल की जो औलाद है वो अरब कहलाई और इसहाक की जो औलाद है वो बनी इसराइल कहलाई, जिसके अंदर में यहूदी भी आ गए और उसके अंदर में नसरानी भी आ गए। तो नसब के एतबार से, ख़ानदान के एतबार से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सबके दादा हुए, जद्द अमजद, सबसे बड़े दादा हुए। अब चूँकि अरब लोग जो हैं वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद है, इसलिए अरब के मुशरिकीन और कुफ़ार भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते थे और ये दावा करते थे कि अच्छा, खुद जो है कुफ्र करते थे और शिरक करते थे मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार, और दावा करते थे कि हम तो हमारे जद्द अमजद, बड़े दादा जो इब्राहीम हैं, हम तो उनके मसलक पर हैं, हम तो उनके मजहब के ऊपर में हैं, उन्हीं के दीन पर हम चलते हैं। यहूद ये भी दावा करते थे, नसारा ये भी दावा करते थे, और हम और आप मिल्लत इस्लामिया, ये हम दावा करते हैं कि हमारा और आपका जो मजहब और मिल्लत है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ही का मिल्लत और मजहब के। कुरान पाक के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरी जगह में फरमाया है, मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम का मजहब, मिल्लत है। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, उसी इब्राहीम ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। मुसलमान यानी ताबेदार, अल्लाह के फरमा बरदार। उस दिन भी हमने बताया था कि कुरान पाक बराह रास्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबी थे और जिन लोगों के दरमियान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना करके भेजा गया वो लोग भी अरबी थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने बराह रास्त डायरेक्ट अरबों को कहा कि मिल्लत अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप दादा, तुम्हारे बड़े दादा इब्राहिम का ये मसलक और मजहब है।
ہم چونکہ دین کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیرو ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پر چلنے والے ہیں، اس لیے گویا اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھی کہتا ہے کہ ملت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے روحانی پیشوا اور روحانی باپ دادا ابراہیم کا دین اور مذہب ہے، انہی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہوا ہے۔ تو جو آدمی بڑا ہوتا ہے تو اس کی طرف سارے لوگ اپنی نسبت کرتے ہیں، گاؤں کے اندر میں، شہر کے اندر میں، علاقے کے اندر میں کوئی عزت دار ہے، کوئی بڑا آدمی ہے تو کہ وہ ہمارے وہ فلانا رشتہ لگتا ہے، فلانے رشتہ دار ہوتے ہیں، رشتے کے اعتبار سے ہمارے یہ لگتے ہیں، وہ لگتے ہیں، بڑے آدمی کی طرف ہر آدمی نسبت کرتا ہے۔ ہندوستان کے اندر میں حدیث شریف کا علم آ گیا تھا، لیکن سند کے ساتھ میں نہیں آیا تھا۔ شاید تھوڑے دن پہلے بھی بتایا تھا کہ سب سے پہلے سند کے ساتھ علم حدیث کو حجاز سے، عربستان سے لانے والے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرکزہ نے اپنے آپ بیتی کے اندر میں لکھا ہوا ہے کہ فارغ ہونے کے بعد میں نے ہندوستان کے اندر میں جتنے بھی مدرسے تھے، دارالعلوم بڑے جہاں پر حدیث پڑھائی جاتی ہے، ان مدارس کے اندر میں نے خط لکھا کہ آپ کے یہاں جو حدیث پڑھائی جاتی ہے اس کی سند بھیجو کہ تمہارے یہاں کس سند کے ساتھ میں حدیث آئی ہوئی ہے۔ حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ ساری جگہ سے جواب آیا خط کے اندر میں، اور سارے مدارس اور حدیث کے پڑھانے والوں کی سند کا سلسلہ پہنچا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ کسی بھی ادارے کے اندر میں جاؤ اور آپ کہیں پر بھی جو ہے سند جو حدیث کی جو اجازت دی جاتی ہے، ابھی 2-3 سال سے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہم جب سے یہاں بخاری شریف اور کچھ تفسیر کے سبق پڑھاتے ہیں تو جلسے کے اندر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولانا کھڑے ہو کر وہ اجازت دیتے ہیں حدیث کی، اور ان کے یہاں طریقہ ہے کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکزہ جب اپنے شاگردوں کو اجازت دیتے تھے سند کی، حدیث کی، تو کھڑے ہو کر کے دیتے تھے۔ اس لیے حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولائی دامت برکاتہم بھی سالانہ جلسے کے اندر میں کھڑے ہو کر کے جو ان کے پاس دورہ حدیث کے پڑھنے والے طلبہ فارغ ہونے والے ہوتے ہیں ان کو سند کی اجازت دیتے ہیں۔ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک یہ سند پہنچتی ہے، اور پھر ان سے حجاز کے اندر میں اور مکہ مکرمہ کے اندر میں آپ نے 2 یا 3 سال رہ کر کے جو حدیثیں پڑھی تھی ان کے جو اساتذہ تھے ان تک پہنچتی ہے، اور پھر وہاں سے لے کر کے جو ہے امام بخاری تک، مسلم تک، ترمذی تک، ابو داؤد تک، نسائی تک، ابن ماجہ تک، اور پھر وہاں سے لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک حدیث کی سند پہنچتی ہے۔ اسی لیے محدثین کے یہاں ایک بات مشہور ہے کہ لولا الاسناد، یہ حدیثوں کو اگر سند کے ساتھ بیان کرنے کا رواج نہ ہوتا، لولا الاسناد، حدیثوں کو سند کے ساتھ بیان کرنے کا رواج نہ ہوتا تو لقال من شاء ما شاء، لولا الاسناد لقال من شاء ما شاء، اگر سند کے ساتھ حدیث بیان کرنے کا رواج نہ ہوتا تو جو آدمی جو چاہتا وہ کہہ دیتا۔ ابھی کل پرسوں کہا تھا موضوع روایت کے بارے کے اندر میں، من اکل بعدن جان ثم وضع بطنہ فلا یلومن الا نفسہ، جس نے بیگن کھایا پیٹ میں تکلیف ہوئی تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ یہ موضوع روایت ہے، من گڑت روایت ہے، موضوع 4000 روایتوں کا مجموعہ ابن جوزی نے، ان کے والد صاحب نے کہا کہ ان کو یاد کرو، مزبا نے یاد کیا تو پھر کیا بتایا، یہ ساری روایتیں موضوع ہے، من گڑت ہے۔ تو سند کے ساتھ میں اگر روایتوں کو بیان کرنے کا محدثین کا تذکرہ نہ ہوتا تو ہر آدمی اپنی طرف سے جو کچھ بھی بیان کرنا چاہتا، کہنا چاہتا، کہہ دیتا۔ ایک بات ابھی ذہن کے اندر میں آئی، بتا دیتا ہوں کہ ہمارے یہاں وعظ، تقریر، نصیحت کرنے والے بیان کرتے ہیں،
हुब्बुल वतन मिनल ईमान, हुब्बुल वतन मिनल ईमान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान। ज़ादुस सईद के अंदर में एक हदीस की किताब है, ज़ादुस सईद, उनके मुसन्निफ का नाम है अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े मोतबर है हदीस के बाब के अंदर में, मोतबर है। अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हुब्बुल वतन मिनल ईमान, ये लफ्ज़ के एतबार से मौजू है और माना के एतबार से सही है। अब एक बात और हो गई, लफ्ज़ के एतबार से मौजू मन गलत और माना के एतबार से सही। ये कुछ बातें हैं, अब माशाल्लाह ये असबाक सुन सुन करके आप भी माशाल्लाह जानने वाले बन गए, तो कुछ और भी ज़रा डोज ज़रा बड़ा बड़ा थोड़ा थोड़ा देना चाहिए था, जितना हजम हो सके इतना। कभी हदीस लफ्ज़ के एतबार से मौजू होती है, लफ्ज़ के एतबार से मौजू होने का मतलब ये होता है कि वो लफ्ज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं फरमाए। हुब्बुल वतनी मिनल ईमान कहते हैं, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, और हम बड़े ध्यान से शौक़ से सुनते हैं। वतन की जब तारीफ वगैरह होती है, वतन में कोई खिदमत करना होता है, फौरन वालों से जब पैसा बटोरना होता है, तो कि हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं फरमाया। ये रिवायत मौजू है, मौजू यानी मन गढ़त, लफ्ज़ के एतबार से मन गढ़त अल्लामा सखावी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा। लेकिन उसका जो मफ़हूम है, उसका जो माना है और मतलब है, ये सही है। वतन की मोहब्बत ये ईमान का जुज़ है, ईमान का हिस्सा है, ये सही है। लेकिन ये लफ्ज़ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से बयान नहीं फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के अंदर में वतन की मोहब्बत थी। हिजरत की रात को जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के वक्त में मक्का मुकर्रमा से निकले और मक्का मुकर्रमा से निकल करके मकाम जुहफा के पास, जहाँ मीकात है, 5 मीकात है नहीं, 5 मीकात के अंदर में मकाम जुहफा भी जो वो मीकात है, मक्का मुकर्रमा के बिल्कुल करीब के अंदर में है। मदीना मुनव्वरा से अगर आप आते हैं तो जुल्हुलैफा मदीना मुनव्वरा से 7 किलोमीटर के ऊपर में वो मीकात है, और उसी रास्ते के ऊपर में आप मक्का मुकर्रमा में दाखिल हों तो मक्का मुकर्रमा से पहले, अब तो मक्का मुकर्रमा की आबादी के अंदर में शामिल हो गया, वो मकाम जुहफा है। मकाम जुहफा के पास, जबकि मक्का मुकर्रमा से वो जगह बाहिर थी, हिजरत की रात को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का मुकर्रमा की तरफ नज़र फरमाई और फरमाया कि ये मेरा वतन मक्का, मैं तुझे महबूब हूँ, तो मेरा महबूब है, लेकिन तेरे अहल और तेरे रहने वाले मुझे अच्छी तरीके से रहने नहीं देते, इसलिए मैं ये जा रहा हूँ। ये आपने नज़र डाली और अपने दिल के अंदर में ख्याल फरमाया। तो इससे मालूम होता है कि वतन की मोहब्बत एक असल है। इस पर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अपने दिल के अंदर में ख्याल किया मकाम जुहफा के अंदर में, तो उसी वक्त के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने आयत नाजिल फरमाई, इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन ला राद्दूका इला माद, इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन, बेशक वो ज़ात कि जिसने तुम पर कुरान उतारा, फ़रज़ का माना फ़र्ज़ किया नहीं, फ़रज़ का माना यहाँ पर उतारना, इन्नल्लज़ी फ़रज़ अलैकल क़ुरआन, वो ज़ात कि जिसने आप पर कुरान नाजिल किया, उतारा, लरादू का आपको ज़रूर बेज़रूर वापस लाएंगे, वापस लौटाएंगे, इला माद, इला माद, माद कहते हैं लौटने की जगह को। दुनिया रहने की जगह नहीं है, आखिरत रहने की जगह है और जन्नत रहने की जगह है। हमारा असली वतन जन्नत है, तो अल्लाह तबारक व तआला कहाँ वापस ले जाएगा? जन्नत में ले जाएगा। हमेशा रहने की ज़िंदगी, वापस जाने की, लौटने की ज़िंदगी आखिरत है, इसलिए दुनिया को माश कहा जाता है और आखिरत को माद कहा जाता है। माद यानी वापस लौटने की जगह। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी
کہ आप मक्का मुकर्रमा छोड़कर जा रहे हैं तो ये हमेशा के लिए आप जा नहीं रहे, ये तो आपके लिए वापस लौट कर आने की जगह है। ये है वतन की मोहब्बत। तो माना और मतलब के एतबार से सही है, लेकिन वो अल्फाज बयान नहीं करने चाहिए जो बाज़ लोग बयान करते हैं। तो हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देवलवी रहमतुल्लाह अलैह सनद के ऊपर में से बात निकली थी, हर आदमी अपनी निस्बत शाह वलीउल्लाह की तरफ करता है। उलमाए देवबंद वो भी अपनी निस्बत शाह वलीउल्लाह की तरफ करते हैं। गैर मुक़ल्लिदीन ये भी अपनी निस्बत शाह वलीउल्लाह की तरफ करते हैं। बरेलवी ये लोग भी अपनी निस्बत शाह वलीउल्लाह की तरफ करते हैं। इसी तरीके से हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बड़े आदमी थे तो ये सारे लोग हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरफ निस्बत करते थे। यहूदी कहते थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी थे, ईसाई कहते थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम नसरानी थे, मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार ये कहते थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुशरिक थे। कुरान पाक के अंदर में है, अल्लाह तबारक व तआला ने सबकी तरदीद फरमाई, मा काना इब्राहीम यहूदियन वला नसरानियन वलाकिन काना हनीफन मुस्लिमा। मा काना इब्राहीम यहूदियन, इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी नहीं थे। मा काना इब्राहीम यहूदियन वला नसरानियन, और नसरानी नहीं थे। तो यहूद की नफ़ी हो गई, इनकार हो गया, नसरानी की भी नफ़ी हो गई। दूसरी बात यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी नस्ल के अंदर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक 4 वज़ीर अंबिया अलैहिस्सलाम आए, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उनके अक़ीदे के मुताबिक, ईसाइयों के अक़ीदे के मुताबिक ख़ातमुन नबीयीन है, ख़ातमुल अंबिया है, ख़ातमुन नबीयीन है। वो यूँ कहते थे कि बस ये आखिरी नबी है। इसीलिए ये नसारा और ईसाई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाए, इसलिए कि वो ईसा अलैहिस्सलाम को ख़ातमुल अंबिया समझते थे। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ख़ातमुल अंबिया है, हमारा अक़ीदा है ख़ातमुल अंबिया है। अब वहाँ पर ईसाइयों को और नसारा को एक शुबा हो गया, शक हो गया, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने से इनकार कर दिया। वो ख़ातमुल अंबिया थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के अंदर में, तमाम नबियों के अंदर में नहीं, बनी इसराइल के अंदर में नबूवत का सिलसिला हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद से लेकर के जो चला, नबियों का रसूलों का आने का सिलसिला, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक चला। ये है ख़ातमुल अंबिया। कैसे? बनी इसराइल के नबियों को ख़त्म करने वाले, कि अब बनी इसराइल के अंदर में कोई नबी आने वाला नहीं है, और हमारे और आपके जो रसूल हैं ये ख़ातमुन नबीयीन हैं, तमाम नबियों के ख़ातम, उनके बाद में कोई नबी आने वाले नहीं है। तो कुर्ब क़यामत, क़यामत के नज़दीक जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर से दुनिया पर उतरेंगे, उनके उतरने की बहुत सी हिकमतें हैं, बहुत सी मसलहतें हैं। इनमें से एक हिकमत और मसलहत ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ दुनिया में आने के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के मुताबिक और इस मज़हब के मुताबिक, कुरान और हदीस के मुताबिक फैसला करेंगे और बताएंगे कि ख़ातमुन नबीयीन मैं नहीं था, ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और भी बातें हैं लेकिन अभी वो वक्त नहीं है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यहूदी, अच्छा यहूदी कब हुए? ये तो मूसा अलैहिस्सलाम के बाद में हुए, तौरात नाजिल होने के बाद में हुए, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो उनसे पहले थे। तो यहूदियों का ये दावा करना कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहूदी थे, कैसे? जबकि तौरात भी नहीं आई थी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर में, इंजील भी नहीं आई थी, तो कैसे नसरानी हो गए? अल्लाह ताला ने तरदीद कर दी, मा काना इब्राहीम यहूदिय्यन वला नसरानिय्यन। मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार ये दावा करते थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो है बुत परस्त थे, बुतों की पूजा करते थे। हालांकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम का काम बुतों को तोड़ने का था, बुतों की तरदीद करने की थी।
उसी माहौल के अंदर में पैदा हुए थे, लेकिन फिर अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उस माहौल से, उस जगह से हिजरत कर ली। इराक से हिजरत करके मुल्क शाम चले गए। तो मुशरिक भी नहीं थे, वलाकिन काना हनीफा मुस्लिमा, यकसू होकर के अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने वाले थे। तो मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार को अल्लाह तबारक व तआला ये फरमाते हैं कि जब तुम दावा करते हो कि हमारा मज़हब और हमारा मिल्लत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मिल्लत और मज़हब है, तो इब्राहिम तो कानितन लिल्लाहि हनीफा, अल्लाह ताला की फरमा बरदार थे, यकसू होकर की इबादत करने वाले थे। तुम्हारी तरह बूतों की पूजा इबादत करने वाले नहीं थे। वलम यकुन मिनल मुशरिकीन, और मुशरिकीन के अंदर में से भी नहीं थे। तो यहाँ मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार को अल्लाह तबारक व तआला रद्द फरमाते हैं, इन इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा, बेशक इब्राहिम अलैहिस्सलाम काना उम्मतन, एक उम्मत थे। उम्मत जैसे कि हम और आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कहलाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत, फलाने नबी की उम्मत। उम्मत गरोह को कहते हैं, उम्मत जमात को कहते हैं। किसी नबी के, किसी रसूल के जो मानने वाले होते हैं उनको उम्मत कहा जाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम है एक। इन्न इब्राहीम, बेशक इब्राहिम, कान का माना थे, उम्मतन, उम्मत थे, उम्मत थे, अकेले इंसान हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनका जिक्र फरमाते हैं कि इनकी हैसियत एक उम्मत के बराबर थी, उनकी हैसियत एक जमात के बराबर थी। तो उम्मत का माना जमात के भी आता है, कौम के भी आता है, और उम्मत का माना इमाम के भी आता है, और उम्मत का माना मुक्तदा का भी आता है, पेशवा का भी आता है। हम इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं तो हमको क्या कहा जाता है? मुक्तदी कहा जाता है। इमाम के पीछे जो नमाज पढ़ने वाले होते हैं उनको मुक्तदी कहते हैं, और जिस इमाम के पीछे हम नमाज पढ़ते हैं उस इमाम को मुक्तदा कहा जाता है। मुक्तदा, इमाम को मुक्तदा कहा जाता है और पीछे नमाज पढ़ने वाले को मुक्तदी कहा जाता है। तो एक बात तो मुफस्सिरीन और उलमा किराम ने ये लिखी कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर में अल्लाह को मानने वाला, यकसू होकर इबादत करने वाला, कानितन, अल्लाह का ताबेदारी के साथ इबादत करने वाला हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अलावा कोई नहीं था। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उन अकेले को एक कौम और एक जमात के दर्जे के अंदर में जिक्र फरमाया। दूसरी बात उलमा किराम ने ये लिखी है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अंदर में जो सिफात थी और जो अवसाफ थे वो इतने ज़्यादा थे, इतने ज़्यादा थे कि एक उम्मत के अंदर में भी नहीं हो सकते और एक कौम के अंदर में भी नहीं हो सकते। इतने सारे अवसाफ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अंदर में मौजूद थे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उम्मत बयान फरमाया। इन्न इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा वलम यकुन मिनल मुशरिकीन, और मुशरिकीन में से नहीं थे। शाकिरन लिअनउमी, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नहल के अंदर में, या उसका दूसरा नाम जो था सूरतुन निअम, नेमतों वाली सूरत के अंदर में इनामात को जिक्र फरमाकर अल्लाह तबारक व तआला मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार को दावत देते हैं कि अल्लाह की नेमतें खाओ और अल्लाह को मानो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। एक तरफ हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपना बड़ा और अपना पेशवा मानते थे और अल्लाह का इनकार करते थे। एक तरफ इब्राहिम अलैहिस्सलाम का काम था बुतों को तोड़ना, बुतों को ख़त्म करना, और इनका काम था बुतों को पूजना और बुतों की इबादत करना। तो अगर तुम दावा करते हो कि हमारे बड़े इब्राहिम हैं, तो इब्राहिम तो लम यकुन मिनल मुशरिकीन, ये तो मुशरिकीन में से नहीं थे, अल्लाह के अलावा किसी को मानने वाले नहीं थे। शाकिरन लिअनउमी, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्रिया बजा लाने वाले थे। तो तुम क्यों अल्लाह ताला की नेमतों को खा करके, इस्तेमाल करके अल्लाह ताला का शुक्र बजा नहीं लाते? इज्तबाहु, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको चुन लिया था
इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वहदाहु इला सिरातिम मुस्तकीम, और उनको अल्लाह तबारक व तआला ने सिरात मुस्तकीम की हिदायत अता फरमाई थी। व आतैनाहु फिद दुनिया हसना, और हमने उनको दुनिया के अंदर में भलाई दे रखी थी। व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, और बेशक इब्राहिम अलैहिस्सलाम आखिरत के अंदर में अलबत्ता नेक लोगों में से है, होंगे नहीं, नेक लोगों में से हैं, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने उनका शुमार नेक लोगों के अंदर में से किया हुआ है। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के औसाफ और अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सिफात अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार के सामने बयान की, और आज ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम के औसाफ और सिफात अल्लाह तबारक व तआला हमारे और आपके सामने बयान फरमाते हैं। और इन सिफात का बयान करने का मंशा और मकसद ये है कि हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत के ऊपर में चलने वाले बन जाए। मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, यकसू होकर के अल्लाह के ताबेदार बन जाए, अल्लाह के फरमाबरदार बन जाए और शिरक से दूर रहने वाले बन जाए, अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का शुक्रिया अदा करने वाले बन जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको दुनिया के अंदर में भलाई अता फरमाई, आखिरत के अंदर में उनका शुमार सालिहीन के अंदर में बयान फरमाया। तो इन सिफात पर चलने की वजह से जो दीन मिल्लत इब्राहीमी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान और हदीस की शक्ल के अंदर में लाए, उसके ऊपर चलने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर में भी भलाई अता फरमाएंगे और आखिरत के अंदर में भी हमारा और आपका शुमार इंशाअल्लाह सालिहीन के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे। ये नसीहतें की अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का के मुशरिकीन और कुफ़ार को, और आज के एतबार से हमें और आपको अल्लाह तबारक व तआला ने नसीहतें फरमाई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र फरमाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि सुम्मा अवहयना इलैका, फिर हमने आपकी तरफ वही भेजी, यानी अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हैं कि फिर हमने आपकी तरफ वही भेजी। वही के अंदर में क्या हुक्म दिया? अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सिफात बयान फरमाई, फिर उसके बाद में हुक्म दिया अनित्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा, अन ये के इत्तबि इत्तिबा करो, पैरवी करो, चलो मिल्लत इब्राहीम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिल्लत पर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मजहब पर, हनीफन यकसू होकर के, वमा कान मिनल मुशरिकीन, और इब्राहिम ये मुशरिकीन में से नहीं थे। पहले भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्न इब्राहीम कान उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा वलम यकुन मिनल मुशरिकीन, मुशरिकीन में से नहीं थे। यहाँ पर फरमाया अनित्तबि मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा कान मिनल मुशरिकीन, मुशरिकीन के अंदर में से नहीं थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा और पैरवी करने के लिए हुक्म दिया। उलमा ने लिखा हुआ है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मसलक पर चलने वाले लोग जैसे जैसे ज़माना गुजरता गया उनके अंदर में तब्दीली आती गई। यहाँ तक कि उलमा ने ये भी लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर में जो फिरका है, जो जमात है, ब्राह्मण की जो जमात है, ये ब्राह्मण भी इब्राहिम से बिगड़ करके आया हुआ है। इब्राहिम इब्राहिम अब्राहिम अब्राहम अब्राम, फिर बिगाड़ते जो उसका ब्राह्मण कर दिया, ब्राह्मण। और ये जो ब्राह्मण लोग जो हैं उनके अंदर में आज भी जो कुछ चीज़ें हैं वो वही चीज़ें हैं जो मिल्लत इब्राहिमिया के अंदर में थी, हमारे अंदर में है। जैसे हम जब हज के लिए जाते हैं, उम्रा के लिए जाते हैं, तो सफ़ेद चादरें पहनते हैं, एक चादर ऊपर और एक चादर नीचे, एहराम की जो चादरें पहनते हैं। फिर पाँव के अंदर में जूता नहीं पहनते, चप्पल ऐसे पहनते हैं कि वो ऊपर वाला हिस्सा जो छुपने ना पाए, और ये पाँव का जो अंगूठा और जो उंगली है उसके ऊपर में एक लकड़ी जैसा पहले आता था जिसको खड़ाव कहते थे, लकड़ी की होती थी पावड़ी।
तो यहाँ पर ये अंगूठा और उंगली इसके बीच के अंदर में ये होता था, और ये इसलिए रखा जाता था कि पाँव के अंगूठे में अंदर की जानिब में, उंगली की जानिब में एक रग होती है, ये रग अगर दाबे तो इसकी वजह से शरीयत का कंट्रोल होता है। अब ये तो समझना तो आसान हो गया, एक्यूप्रेशर और एक्यूपंचर और एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर के अंदर में भी क्या होता है, रगों को दबाया जाता है। एक किताबें भी है कि आपकी तंदुरुस्ती आपके हाथ के अंदर में रगे हैं और कहाँ पर कितनी मरतबा दबाओ, क्या क्या दबाओ, तो उसकी वजह से तुम्हारी कौन कौन सी बीमारी अच्छी हो जाए। तो ये अंगूठे के पास में एक रग है, उसके दबने की वजह से शहवत कंट्रोल के अंदर में आती है। तो ये चीज़ें हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बकिया चीज़ें भी हैं, जैसे सफ़ा और मरवा के दरमियान में दौड़ते हैं वगैरह, काबतुल्लाह का तवाफ करते हैं, अरफात, मीना, मुज़दलिफा, जो सब जगह में जाते हैं, तो ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सब सुन्नत है। इसी तरीके से ये लोग भी बिगाड़ करके यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। तो वमा कान मिनल मुशरिकीन, और ये मुशरिकीन में से नहीं थी। इन्नमा जुइल अस्सब्तु अलल्लज़ीना इख्तलफू फीह व इन्न रब्बक लयहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फीमा कानू फीहि यख्तलिफून। यकीनन शनिचर का दिन मुतय्यन किया गया था उन लोगों पर जिन लोगों ने शनिचर के बारे में इख्तिलाफ किया था। अब ये जो शनिचर के दिन का जो किस्सा है, शनिचर के दिन का, तो ये बाद की बातें हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद की बातें हैं। शनिचर का मसला क्या है, शनिचर का किस्सा क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल को जुमा के दिन इबादत करने के लिए पसंद किया था कि जुमा के दिन इबादत करो, लेकिन बनी इसराइल ने नाफरमानी की कि नहीं, हम जुमा के दिन इबादत करना नहीं चाहते, हम शनिचर के दिन इबादत करना चाहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि हमारा मंशा खुदाबंदी तो ये था कि ये लोग जुमा के दिन इबादत करें, लेकिन शनिचर को चाहते हैं तो कोई बात नहीं, शनिचर को इबादत करने के लिए उनको बोल दो। अब ये शनिचर का दिन जो है यौम सब्त, ये ताज़ीम का दिन समझा जाता है। शनिचर का दिन जो है वो ताज़ीम का समझा जाता है, और उस दिन के अंदर में, साल के अंदर में, एक शनिचर के दिन के अंदर ये लोग अपने कनीसा या अपने गिरजाघर या अपने इबादत खानों के अंदर में जमा होते, और बड़ा बाबरकत और मुक़द्दस दिन समझा जाता है, और अपने तौरात वगैरह के एतबार से जो कुछ भी उनको पढ़ाना वगैरह होता है, तो उस दिन के अंदर में ये पढ़ते हैं। ये अरब लोगों का ये कहना है कि ये हमास वालों ने जो यहूद पर जो हमला किया था वो शनिचर का दिन था, और इसी शनिचर के दिन के अंदर में ये लोग ताज़ीम करने के लिए अपनी इबादत गाहों, गिरजा गाहों के अंदर में मशगूल थे। उसी दिन के अंदर में ये हमास वालों ने उन पर हमला किया था। ये है शनिचर का दिन। तो शनिचर का दिन तो अल्लाह ताला को पसंद नहीं था, जुमा का दिन पसंद था, लेकिन उन्होंने शनिचर का दिन मांगा तो अल्लाह ने कहा कि ठीक है, शनिचर का दिन, शनिचर के दिन की अब ताज़ीम करो। ताज़ीम करने के अंदर में उनको ये कहा गया कि शनिचर के दिन मछली का शिकार करना हराम। शनिचर के दिन के अंदर में मछली का शिकार करना हराम, नहीं शिकार कर सकते थे। अब इसके अंदर में एक किस्सा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर में पैदा हुआ, एक किस्सा पेश आया हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में। असल में था ये कि शनिचर के दिन मछली का शिकार करने से उनको रोका गया। समंदर, दरिया, नदियों के किनारे के ऊपर में ये रहते थे। शनिचर के दिन किनारों के ऊपर में जब घूमने के लिए निकलते थे तो समंदर में से और नहर में से और नदी में से मछलियाँ कूद करके उनके पाँव में पड़ती थी, लेकिन पकड़ नहीं सकते थे, मना किया हुआ था अल्लाह तबारक व तआला ने। तो उन्होंने हीला किया। क्या हीला करते थे कि मछली को पकड़कर उसके बदन के अंदर में वो सुई, जैसे वो मछली का पकड़ने का जो कांटा आता है, इस तरीके से वो कांटा उसमें डाल देते, और उस कांटे के साथ में धागा बांध देते, और धागा बांध करके उस मछली को फिर
समंदर में, नदी के अंदर में छोड़ देते और इसका धागा दरिया किनारे के ऊपर में किसी लकड़ी को गाड़ करके इसके अंदर में बांध देते थे। अब इतवार के दिन जाते और फिर वो मछली को पकड़ करके लाते कि अल्लाह ताला ने शनिचर के दिन शिकार करने का मना किया, तो हमने शनिचर को शिकार नहीं किया, हमने तो इतवार के दिन शिकार किया। एक तो हीला ये लिखा है। और बाज़ लोगों ने ये लिखा है कि समंदर से पानी आता था, अपने यहाँ आता है जैसे बर्ती और ओट बोलते हैं, इस तरीके से मध्य जज़र अरबी के अंदर में उसको कहते हैं, तो पानी आता था। शनिचर के दिन जब पानी आता तो किनारों तक पानी आ जाता और ये किनारों पर जाकर के बैठते थे, मछलियाँ उनके पाँव के अंदर में पड़ती थी, लेकिन क्या करें, शनिचर के दिन शिकार करना मना था, नहीं करते थे। हीला उन्होंने ये किया कि शनिचर के दिन से पहले वो क्या करते, नदी और समंदर के किनारे के ऊपर में खड्डे खोद देते और शनिचर के दिन जब पानी आता और उसके अंदर में मछलियाँ भी आती तो वो खड्डों के अंदर में पानी के साथ में मछलियाँ रुक जाती, जब पानी उतर जाता तो अब फिर दूसरे दिन जाकर के जो मछलियों को पकड़ लाते थे, ये हीला करते थे। अच्छा, अब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर में ये लोग थे कि शनिचर के दिन मना करने के बाद भी वो लोग शिकार करते थे। तो समझाने वाले भी हर दौर के अंदर में होते हैं, समझाने वाले समझाते रहे, नहीं समझे कि नहीं हम तो शिकार करेंगे। और आजमाइश के तौर पर यह था कि शनिचर के दिन में मछलियाँ बहुत निकलती थी, दूसरे दिनों के अंदर में निकलती नहीं थी, आती नहीं थी। फिर इसके बाद समझाने वालों को डर लगा, डर महसूस हुआ कि तुम लोग मानते नहीं और अल्लाह की नाफरमानी करते हो तो कहीं अल्लाह का अदब तुम पर आएगा और हम भी इसके अंदर में फंस जाएंगे। तो बस्ती के अंदर में दो हिस्से कर दिए, मानने वालों का हिस्सा अलग और न मानने वालों का हिस्सा अलग। एक मरतबा ऐसा हुआ कि रात को सब सो गए, दूसरे दिन सुबह के अंदर में ये जो न मानने वाले थे और मछली का जो शिकार करने वाले थे, वहाँ से कोई आवाज़ ही नहीं आती, कोई शोर सगत, बच्चों की चीखने की, चिल्लाने की, जानवर कोई आवाज़ ही नहीं आती। तो ये जो नेक साले दीनदार थे वो लोग सोचे कि भाई क्या है ये, कोई आवाज़ ही नहीं आती। तो वहाँ पर जाकर के जब देखा तो सारे के सारे जो है बंदर बना दिए गए थे। ये इसके अंदर में भी है, पहले पारे के अंदर में भी है। और हज़रत कतादा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लिखा है कि उनके अंदर में जो जवान थे उनको अल्लाह तबारक व तआला ने बंदर बना दिया और जो बुढ़े थे उनको अल्लाह तबारक व तआला ने खिंजीर बना दिया। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो है इनको सज़ा हुई थी। वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति, पहले पारे के अंदर में है कि अलबत्ता तुम जानते हो उन लोगों को कि तुम में से जिन लोगों ने शनिचर के दिन मानने के अंदर में ज़्यादती की, यानी शनिचर के दिन के अंदर में मछली पकड़ने से जो मना किया गया था लेकिन वो पकड़ते रहे। फ़क़ुलना लहुम, हमने उनको कहा कुनू, बन जाओ, हो जाओ, क़िरदतन, क़िरदतन यानी बंदर, ख़ासिईन, ज़लील बंदर बन जाओ। उलमा ने और मुफस्सिरीन में लिखा हुआ है कि उस इलाके के अंदर में भी इन लोगों के रिश्तेदार थे, मानने वालों के अंदर में न मानने वालों के रिश्तेदार थे। तो बंदर की शक्ल के अंदर में अपने अपने रिश्तेदारों के पास में आते थे और चूँकि कुछ अपनी ज़बान से बोल नहीं सकते थे, अल्लाह तबारक व तआला ने ज़बान के ऊपर में मोहर लगा दी थी और उनकी आँखों से आंसू टपकते थे, बंदरों की आंखों से आंसू टपकते थे, गोया ये रो रहे थे और अपनी नाफरमानियों के ऊपर में नदामत और पछतावा कर रहे थे, लेकिन अल्लाह के अज़ाब के अंदर में मुब्तला हो गए। उसके बाद में इन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने 3 दिन के अंदर में हलाक कर दिया। एक मरतबा हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत के अंदर में है कि कहीं पर बंदर देखे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, ये वही बंदर हैं जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम या बनी इसराइल के अंदर में जो बंदर बना दिए गए थे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का अज़ाब जब किसी कौम पर, किसी बस्ती पर आता था तो
तो उस अजाब का असर 3 दिन तक रहता था और 3 दिन के अंदर में वो लोग ख़त्म हो जाते थे। तो जिनको बंदर बनाया गया था, ये बंदर 3 दिन तक रहे, फिर उसके बाद में जो वो लोग ख़त्म कर दिए गए। तो ये जो बंदर है या जो खिंजीर है, ये वो नस्ल नहीं है कि जो बनी इसराइल के ज़माने के अंदर में जिन पर अजाब आया था और उनको बंदर बना दिया गया था और खिंजीर बना दिया था। ये तो अल्लाह ताला की मखलूक है, बंदर भी अलग अल्लाह ताला की मखलूक है। और इसी तरीके से जो है ये खिंजीर जो है ये भी अल्लाह की मखलूक है। इन्नमा जुइल सब्तु अला लज़ीना इख्तलफू फीह व इन्न रब्बका लयहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफून। यकीनन शनिचर का दिन मुतय्यन किया गया उन लोगों के ऊपर में जिन लोगों ने शनिचर के दिन के बारे में इख्तिलाफ किया। ये माना नहीं कि भाई हम तो जुमा को इबादत नहीं करेंगे, हम तो शनिचर को इबादत करेंगे। अगर ये है शनिचर को इबादत करने वाले और शनिचर की ताज़ीम करने वाले, ये यहूदी है। उसके बाद में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आए और ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी कौम को हुक्म दिया था जुमा के दिन इबादत करने के लिए, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, जुमा के दिन नहीं, जुमा के दिन हम इबादत नहीं करेंगे। और शनिचर के दिन यहूदी इबादत करते थे, उनके नज़दीक मुक़द्दस और मुअज़्ज़म बड़ा दिन समझा जाता था। तो यहूदियों ने उनकी मुखालफत के अंदर में इतवार का दिन पसंद किया, इबादत के लिए इतवार का दिन पसंद किया। हम ये नसरानी ने, ईसाइयों ने ये पसंद किया यहूदियों के खिलाफ। यहाँ हिंदुस्तान के अंदर में अभी 200-250 साल तक ईसाइयों की हुकूमत रही, नहीं अंग्रेज़ों की हुकूमत रही। तो ये इतवार की छुट्टी ये उनका मजहबी काम है, उनका मजहबी छुट्टी थी, इतवार के दिन उनके यहाँ रहती थी। तो आज भी उसका असर है और स्कूलों के अंदर में भी छुट्टी रहती है और अब तो कुछ लोग भी मदरसों के अंदर में भी छुट्टी करना चाहते हैं, इतवार के दिन छुट्टी। और जुमा के दिन क्या करना कि जुमा के दिन पढ़ना। खैर अल्लाह बेहतर जाने। इन्नमा जुइल सब्तु अला लज़ीना इख्तलफू फीह। तो शनिचर की ताज़ीम की यहूदियों ने, इतवार की ताज़ीम की नसारा ने, और सबसे आखिर के अंदर में जो मذहब दीन और ईमान आया, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन आया। और अल्लाह तबारक व तआला का मंशा और मकसद जुमा के दिन इबादत का जो था, वो अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मत को अता फरमाया। जुमा का दिन जो है बरकत का दिन है, जुमा का दिन इबादत का दिन है। हदीस शरीफ के अंदर में आता है कि जुमा के दिन मन गस्सल वगतसल सुम्मा राहा इलल जुमुअती, कि जिसने जो है गुस्ल किया और कपड़े वगैरह धोए और घर का माल सामान वगैरह धोया और उसके बाद में जुमा की नमाज के लिए चला, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी फजीलत बयान फरमाई कि एक कदम चलने पर ये मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा। और जुमा के दिन के अंदर में खुतबा शुरू होने से पहले फरिश्ते दरवाजे के पास में होते हैं, नाम लिखते हैं। सबसे पहला जो आने वाला होता है तो उसके लिए ऊँट की कुर्बानी का सवाब, फिर गाय की, और फिर बकरी की, और फिर मुर्गी की, और आखिर के अंदर में अंडे की। और जब इमाम साहब खुतबा देने के लिए खड़े हो जाते हैं तो फरिश्ते जो है अब दस्तावेज़ को बंद कर देते हैं कि बस अब किसी की इबादत, किसी की कुर्बानी लिखी नहीं जाएगी। तो जुमा के दिन के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने ज़्यादा एहतिमाम करने के लिए भी हुक्म दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और सूरह तबारक की तफसीर के अंदर में भी आता है कि जुमा के दिन अगर कोई सूरह कहफ पढ़ेगा तो अल्लाह तबारक व तआला दज्जाली फितना से हिफाजत फरमाएंगे, दज्जाल से भी हिफाजत फरमाएंगे और दज्जाली फितना से भी हिफाजत फरमाएंगे। और सूरह कहफ की शुरू की 10 आयतें और आखिर की 10 आयतें अगर कोई आदमी पढ़ कर के सो जाए तो छोटे बड़े जितने भी फितने होते हैं उन तमाम से अल्लाह तबारक व तआला हिफाजत फरमाएंगे। इसी तरीके से सूरत दुखान के बारे के अंदर में भी आता है कि सूरत दुखान अगर कोई आदमी जुमा के दिन पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के अंदर में उसके लिए महल बनाते हैं।
تو فضیلت والا دن جو ہے وہ جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن غسل کرنے کی بھی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ مختصر عرض کر دوں کہ مسجد نبوی ایک بالکل یہ جو چھت تھا اس کا، یہ کھجور کے پتے تھے اور کھجور کے تنے تھے اور مٹی کی دیواریں تھیں اور چھت بھی نیچے تھا اور نیچے ریت بچھائی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک سے باہر آئے، تشریف لائے، مسجد نبوی کے اندر میں آئے تو گرمی کی وجہ سے، اور لوگ صحابہ کرام جو ہے کھیتوں کے اندر میں بھی کام کرتے تھے، انصاری صحابہ جتنے بھی ہیں اکثر ان کے اندر میں کھیتی والے تھے، کھیتی کا کام کرنے والے تھے، مہاجرین صحابہ یہ محنت مزدوری کرنے کا کام کرنے والے تھے، اور اونی کپڑا پہنتے تھے، گرم کپڑا پہنتے تھے گرمی کے اندر میں۔ تو پسینہ بہت ہوا اور پسینے کی بدبو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر میں محسوس فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور خطبہ دینے سے پہلے فرمایا کہ کاش کہ تم لوگ جب جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آؤ تو کم از کم کپڑا دوسرا نہ ہو تو کپڑا دھو کر کے آؤ، اور کم از کم جو ہے یہ غسل کر کے آؤ، اور اگر خوشبو اگر ہے تو خوشبو لگا کر کے آؤ۔ حدیث شریف کے اندر میں دو قسم کے لفظ آتے ہیں، ایک تو یہ کہ اپنے پاس میں اگر خوشبو ہے تو خوشبو لگاوے، اور اپنے پاس میں بھی اگر خوشبو نہیں ہے اور بیوی کے پاس میں خوشبو ہے تو بیوی سے بھی خوشبو لے کر کے لگاوے اور جمعہ کے اندر میں آئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو بعد کے اندر میں جب فراوانی ہوئی اور مسجد نبوی جو ہے اس کی تعمیر وغیرہ ہوئی تو یہ جو حکم تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دیا گیا تھا اس کی جو حکمت اور علت وہ علت ختم ہو گئی، لیکن وہ حکم باقی رہا۔ پسینے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدبو سے بچنے کے لیے یہ حکم دیا تھا۔ اب مسجد نبوی بڑی ہو گئی وغیرہ وغیرہ تو اس کے بعد میں جو ہے وہ حکم تو ختم ہو گیا، کیا کہتے ہیں، وہ علت تو ختم ہو گئی لیکن حکم باقی رہا۔ تو جمعہ کے دن غسل کرنا یہ بھی سنت ہے۔ اب کچھ 1 2 3 4 آیتیں باقی ہیں، انشاءاللہ 4 آیتیں باقی ہیں، انشاءاللہ آئندہ کل تفسیر کریں گے، اور اگر چاند ہو گیا تو کسی دن انشاءاللہ یہ، اس لیے کہ دعوت اور تبلیغ کے لائق ہی کا یہ مضمون اور عنوان ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔